Start. Good morning, students. Today we'll study the very first chapter in our syllabus, that is the basic sentence patterns. So before I begin, let us first clear our concepts about certain words. The main word we are using here is sentence. So let us first see what is a sentence. When we say something or when we write something, we are using words. A sentence is also a group of words. And this group of words makes sense. That is, we can use any word, but if we do not use it in a proper order, we cannot make sense. When we put the words in a proper order, we can make sense, and then we can call it a sentence. For example, we can make a sentence like, a dog barks. What we are doing is we are using three words and we are using them in a proper order, and so it is making some sense. For example, what I am doing is I am using a subject and a verb. Now what is a subject? This is a subject. And what I am doing with the next word is I am using it to say what the subject does. That is, we can call it a verb. Now in the subject part, what is a subject? It can be anything about which we are saying something, about which we are talking. It can be an animal, it can be a person, it can be, that is anything under the sun, है ना? हम अपनी सृष्टि के किसी भी वस्तु या व्यक्ति या जगह के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट है. हम उसके विषय में कुछ कह रहे हैं और जो कुछ हम कह रहे हैं वो पार्ट हमारा कहलाता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब होता है टू से समथिंग और टू टेल समथिंग, कुछ कहना. तो हम दो काम कर रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं. हम जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि वो वस्तु या व्यक्ति क्या कर रहा है, या वो व्यक्ति या वस्तु क्या है. For example, I can say, he is a teacher. Now my subject is he, but it is not doing anything. It is the predicate part shows you what the subject is. He is a teacher. We can use the same subject as in the first sentence, and I can say, the dog is an animal. Now what I am doing here is I am saying what my subject is. So my predicate part can tell you it has a verb, and it can tell you what the subject does or what the subject is. Now let us go a step further. हम थोड़ा सा आगे चलें और हम देखें कि हम अपने सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और हम अपने प्रेडिकेट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. जब हम सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे तो अक्सर हम इस जो टर्मिनोलॉजी है हम उसको देखें. पहला जो टर्म हमारे सामने आता है दैट इज नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम देखें नाउन क्या होता है. नाउन की अगर हम सबसे सिंपल डेफिनेशन लें तो ये होती है, इट इज अ नेमिंग वर्ड. नाम बताने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं, है ना. अब
दूसरा जो लेटर हमने यूज किया है फ्रेज, ये क्या होता है? ये होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने सेंटेंस के लिए भी यही कहा था। मैंने क्या कहा था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट व्हाट आई सेड वाज विच मेक्स सम सेंस, रादर आई शुड से विच मेक्स कंप्लीट सेंस। पूरी बात कहता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। फ्रेज भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो क्या कर रहा है? इट मेक्स सम सेंस। कुछ अर्थ तो निकल रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर पूरा अर्थ निकलता है तो वो सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्रेज किसको कह सकते हैं? जैसे है ना, या अब आप देखेंगे कि ये जो शब्दों का समूह है, इसको हम एक काम में ले सकते हैं, दैट इज इट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन अपने आप में ये पूरा नहीं है, पूरा अर्थ इसमें से नहीं निकलता है। सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes some sense but not complete sense. For example, these are some phrases and it can form part of a sentence. Correct? So the first pattern in which we use this term NP, it means noun phrase, and with this noun phrase we will use a verb. So as I was telling you, in the noun phrase we will use a subject. We will say something about somebody or something or some place, and that is why we will call it a noun phrase. Now this noun phrase or the subject part can have a noun. Let me write it down. We can have a noun or a pronoun, that is you can use the name of a person. For example, you can say Hari, or you can say he, or you can use she, or you can use any pronoun. Then we can use an article before the noun or whatever. For example, I use the words a dog. So dog is a common noun and I am using the article a before it. We can also use a possessive pronoun. For example, I can say his father, I can say my mother, I can also say your friend. So we can talk about any one of these. I can talk about his father, I can talk about my mother, I can talk about your friend, and this will form part of your noun phrase. We can also have use an adjective. For example, I can say the tall boy, that is we can use an adjective. See, I am using an article, I am using an adjective, and I am using a noun. So this is a group of words, it is doing the work of a noun, and so this is a noun phrase and we can use it in the first part of the sentence. We can also use determiners. For example, I can say this is the E.
For example, I can say some boys, or I can say this boy, this man, or I can say that house. So these are determiners. We'll talk about it later on also in another chapter, and these are some of the determiners that I am using. Now let us come to the second part. A verb always forms part of the predicate. जैसे मैंने पहले बताया था कि हम subject और predicate, हम कुछ कहते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, जो कुछ हम कहते हैं वो predicate है, जिसके बारे में कहते हैं वो subject है. तो हमारा जो verb होता है ये predicate का part होता है. Verb में हम verb को, जैसे मैंने noun की definition बताई थी, उसी तरह हम देखते हैं verb क्या होता है. Verb क्या होता है? It is a doing word. सबसे simple definition है, जो action बताता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति क्या है, वो कहलाता है हमारा verb. तो अब हम इस verb में क्या यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट पैटर्न हमारा है noun phrase प्लस verb. तो जब इस verb के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब आप मान के चलिए हम जो verb यूज करेंगे वो कैसा verb होगा? इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव का मतलब हमारा सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है वो किसी और तक नहीं पहुंच रहा है. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ एक्शन ही नहीं है. तो हमारा वर्ब कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. और यहाँ पर हम कोई भी एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं. फर्स्ट पैटर्न हमारा इस तरह से बन सकता है. हम सिर्फ एक वर्ड का नाउन यूज कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई. कंप्लीट सेंटेंस है, वर्ड्स इसमें सिर्फ दो हैं. हमारे पास एक नाउन है और एक हमारे पास वर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट है. So we call it a sentence. It is a simple sentence. We are studying what the sentence patterns we are studying is of the simple sentences. We are not going to study compound or complex sentences. For then we can have another example. The fire burns. Now when you are taking your exams, always remember, जब आपसे कहा जाता है कि इस पैटर्न में सेंटेंस बनाइए, तो इस तरह से उनको सेपरेट यूनिट्स में लिखिए, ताकि एग्जामिनर फॉरन आइडेंटिफाई, इसको आप मिला मत दीजिए एक सेंटेंस की तरह. ऑफ कोर्स ही विल नो दैट दिस इज अ सेंटेंस. तो हम इसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा नाउन फ्रेज है, ये हमारा वर्ब है, स्टूडेंट क्या कहना चाहता है ना. तो ये हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए. Some dogs bite. I am using a determiner, I am using a noun, this is my noun phrase, and this is my verb. This is a complete sentence. Yeah. My father teaches. Again, it is a complete sentence. And remember, when you are making these sentences, the first thing that you will do is you will make only, that is, you will use only present tense, simple present tense or simple past tense. Because we are using the basic patterns. बिल्कुल जो आधारभूत हैं हम उनको पढ़ रहे हैं, हम उसमें किसी तरह की एडिशंस कम से कम करेंगे. दूसरा, आप देखेंगे कि मैंने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक हैं, कहीं मैंने नेगेटिव यानी कि नॉट यूज नहीं किया है. सो सेकंड थिंग यू विल रिमेंबर इज यू विल मेक ओनली एफर्मेटिव सेंटेंसेस. हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. तीसरी बात जो आप नोट करेंगे, जो हमें ध्यान में रखनी हुई है, हमारे सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होंगे. आप लोग पढ़ चुके हैं वॉइस 10th में, तो समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस क्या होती है, लेकिन हम आगे भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सो वी विल यूज ओनली एक्टिव वॉइस. सो दीज आर सर्टेन बेसिक थिंग्स वी विल रिमेंबर. यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. Make only affirmative sentences and use only active voice. So this is what you are going to do throughout our chapter. And in this chapter we will study 9 basic sentence patterns of a simple sentence.
The second pattern that we are going to study is, we will use a noun phrase, then we will use a verb which has certain restrictions, we will use the verb to be, and then we will use a complement, and this complement should be a noun complement. Now remember, look at the spelling of the word C-O-M-P-L-E. I am not using I. That has a different meaning. A complement, this word means, here we are using a noun. So a noun which completes the sense of the subject. Because we only have a subject here, we do not have an object. We are using a noun. Then we will use the verb to be. I'll tell you what is a verb to be. And then we'll use another noun which completes the meaning of the subject. So it is a complement to the subject. Now what is the verb to be? It is in the present tense. We can use it, these three, is, am and are. And in the past tense, they are was and were. Because we are using only two tenses, the simple present and the simple past. The verb to be is, it will tell you what a person is or what a person was. So now let us make some sentences. He is, simple present, a teacher. So the complement is, again, in certain books you will see that it is also written as noun phrase. So here the noun phrase can be used in the subject part, it can be used in the predicate part. And as in the subject part, it can have an article, it can have a noun, it can have a pronoun, so on and so forth. Let us see some more examples. This is what we can do. And see, what I am doing is, most of the time I am using the name of a profession. I can also say, make a sentence like, he is a boy. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा नाउन यूज कर रहे हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट में यूज होने वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, समथिंग विच कंप्लीट्स द मीनिंग. Now instead of noun, in the next pattern we will use another complement. This is our pattern number 3. We will use a noun phrase, again a verb to be, and now we will use an adjective complement. Let me first tell you what is an adjective. Adjective क्या होता है? Adjective वो होता है जो कि noun की विशेषता बताता है. It tells you about the quality of the noun. जैसे tall boy, इसमें tall क्या है? Adjective है. लड़का कैसा है? लंबा है. A good person, कैसा व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है. A beautiful girl, a beautiful flower. So words like, and remember one thing, जितने भी colors के नाम है वो सब adjective है. A black box, कैसा बॉक्स है? बॉक्स की क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. तो हम यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, ऐसा एडजेक्टिव यूज करेंगे जो कि इस नाउन की क्वालिटी बताता हो, इस सेंटेंस को कंप्लीट करता हो. Simple. He is handsome. We'll keep our things to the very basic. हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे. जितने वर्ड्स ऐड करोगे उतनी गलतियां होंगी. हम बिल्कुल अपने आप को इजी रखेंगे.
यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने यूज किए हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट की, हम नाम भी यूज कर सकते हैं. यू कैन से माई फ्रेंड इज हैंडसम, माई सिस्टर इज ब्यूटिफुल, माई मदर इज ब्यूटिफुल, माई मदर इज हार्ड वर्किंग, माई फादर इज सिंसियर, है ना. तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो आखिर में मैंने वर्ड यूज किए ये सब एडजेक्टिव्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, मेरे इस सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं. और इनसे क्या हो रहा है, इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है. सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द, एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट. सो दिस इज योर पैटर्न नंबर 3. Now let us come to the next pattern, that is our pattern number 4, which is quite similar. The only thing is now we will use a complement. हम ऐसा complement use करेंगे जो कि एक adverb होता है. Adjective noun के बारे में बताता है और adverb क्या करता है, हमारे verb के बारे में बताता है. वो verb को modify करता है. modify करने का मतलब होता है वो ये बताएगा कोई चीज़ कहाँ है, place of the verb. It can tell you the time, कब काम किया गया. It can tell you the manner, कैसे किया गया. He works fast, कैसे काम करता है, फास्ट करता है. ही के बारे में कुछ नहीं बता रहा, हमें कैसे काम किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी, है ना. तो एडवर्ब कई तरह के होते हैं. हमें टाइम, प्लेस, मैनर, एडवर्ब, क्यों कर रहे हैं हम काम, है ना. जैसे सिंपल सेंटेंस सुनिए, ही वर्क्स, या हम कह सकते हैं ही ईट्स टू लिव, क्यों खाता है, जीने के लिए, है ना. ही अर्न्स टू लिव, किस लिए कमाता है, ताकि वो जिंदा रह सके, है ना. तो काम क्यों किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, ये सब बताने वाले शब्द जो हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, है ना. पर क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो टू बी, यानी कि हम लिमिटेड हैं, हम इसके अलावा कोई और वर्ब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एडवर्ब भी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा. हम ये बता सकते हैं कोई चीज़ कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल मैं पहला सेंटेंस बनाऊंगी, गॉड इज एवरीवेयर, है ना. ये गॉड के बारे में नहीं बता रहे, क्या बता रहा है, वो कहाँ है, वो सब जगह है ना. So it is telling you something more about the verb. It is modifying the verb. Therefore, it is an adverb and it is completing the sense of the verb. So it is an adverb complement. हम phrase भी use कर सकते हैं, adverb phrase. He is in his room. My father, again a noun phrase, is in the garden. She is in the library. So this is our pattern number 4. It is very easy. You will just use a noun or a noun phrase here. Then we will use the verb to be. All the time I am using is. You can also say, use the simple past. You can say she was in the library. And here I am using an adverb phrase which tells you where the person is. So it is adding to the, it is modifying the verb. Then in your syllabus you will see another pattern. This will be a pattern number 5. Noun phrase plus verb plus another noun phrase. Now since we have a noun phrase here, it means that now we can use a verb which is a transitive verb. यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न क्या है, we have a subject, we have a verb and now we have an object. जब भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमारा वर्ब कैसा होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ट्रांजिटिव का मतलब होता है जहां पर हमारा एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना. जैसे
आपने वॉइस पढ़ी है, आपने दो तरह के वर्ड्स देखे होंगे, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जो हमने पहले पैटर्न में यूज़ किया था, यानी कि एक्शन है पर एक्शन का कोई ट्रांसफ़र नहीं है, एक्शन करने वाले तक सीमित है। यहाँ पे हमारा एक्शन सब्जेक्ट करेगा और उसको रिसीव करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लेट अस से द प्लेयर, अब इसने कुछ काम किया, he kicked, किसको किक किया? the ball. So the action is done by the subject, this is the action and it is transferred to the object. तो इस तरह के हमारे जो verbs होते हैं ये कहलाते हैं transitive verbs. Children eat sweets. हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो नॉर्मली एक नाउन होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, एंड इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट एंड इट इज अ नाउन. आप करके देखिए, अगर हम इस वर्ब के बाद क्वेश्चन पुट अप करते हैं, द प्लेयर किक्ड व्हाट, यू विल गेट द आंसर ही किक्ड द बॉल. दिस इज अ नाउन एंड इट इज द ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ब. So this is, I think, one of the easiest patterns in a syllabus. You use a noun, you use any verb, and then you can use another noun, and it can be the name of a thing, it is a noun. So these are the 5 patterns that we have studied today, and I hope they are not difficult, quite easy to understand. Now let us go slightly higher. We can use, in the next pattern we will use a noun phrase, we will use a verb, then we will use another noun phrase, and after that we will use another noun phrase. Let me explain. This noun phrase is your indirect object, और ये जो दूसरा है ये कहलाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये आंसर करेगा व्हाट को, और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है whom को. क्या किया, किसके लिए किया. हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, he gave me, किसको दिया, मुझे दिया, a gift, क्या दिया, एक गिफ्ट दी. To whom and what did I do? I gave a gift and I gave the gift to this person. She gifted him a watch. Her brother sent her, उसको दिया, उसको भेजा, क्या, you can say a cell phone. So remember all the verbs that we are using here, कैसे verbs हैं, ऐसा काम दिखा रहे हैं जो कि हम किसी के लिए कर सकते हैं. हम क्या करते हैं और किसके लिए करते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, whom को आंसर करेगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमेशा नाउन होता है, ये हमारा प्रोनाउन हो सकता है. तो ये सेंटेंस पैटर्न भी काफ़ी इजी है. अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन पे आ जाएंगे अपने चैप्टर के. पैटर्न लिखा इसी तरह जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, नाउन फ्रेज तो हम सब जगह यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है. फिर हम एक वर्ब यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम एक नाउन फ्रेज यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हम जो नाउन फ्रेज यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा. नाउ दिस विल बी एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, not to the subject but to the object.
यानी कि हम क्या करेंगे, अब लास्ट में हम एक एडजेक्टिव यूज करेंगे जो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, वो कैसा है ना, क्वालिटी बता रहा है। तो हम इस तरह का हम किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, ये पैटर्न नंबर 7 हो गया हमारा। He found the classroom। अब ये क्लासरूम कैसा है ऐसा ये बताने वाला वर्ड हम यूज करेंगे, empty। होता है ना कई बार टीचर क्लासरूम में जाता है और क्लासरूम कैसा होता है, खाली। So empty shows you the condition of the classroom and therefore it is an adjective। जो किसी नाउन की कंडीशन बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। The child found the teacher strict। कैसा था टीचर, स्ट्रिक्ट था। The students thought the lecture boring, dull। ये लेक्चर की क्वालिटी बता रहा है, टीचर की नहीं बता रहा, स्टूडेंट्स की नहीं बता रहा, लेकिन जो लेक्चर था वो कैसा था, डल था, बोरिंग था। इट इज टेलिंग यू द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर, द लेक्चर इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट। So this is what you can do in this pattern. You will use a noun, a verb, an object, and then an adjective which tells you about the quality of the object. Now in our next pattern, that is pattern number 8, we are coming almost to the end of the chapter. We will use a noun complement to the object. We are using a noun, a verb, an object, and now in the last part of the sentence we will use a noun which will complement the object, not the subject। जैसे हमने पहले किया था, ही इज अ टीचर, तो ये टीचर किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, सब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम जो कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा और वो हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, उसके सेंस को कंप्लीट करेगा। हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, ही मेड हिम, उसने उसको क्या बनाया, अपना सेक्रेटरी बना लिया। He made him, उसने उसको बनाया, this is your object, or what did he make him, this is these two words, his secretary, अपना secretary बनाया, और ये किसके बारे में बता रहे हैं, आपको आपके ऑब्जेक्ट के बारे में। My father made me an engineer। मेरे फादर ने मुझे एक इंजीनियर बना दिया। The CM appointed her his PA। तो यहाँ पे हम प्रोफेशन का नाम यूज कर सकते हैं और ऐसा प्रोफेशन जो कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न नंबर 8। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पैटर्न इन आवर चैप्टर, दैट इज पैटर्न नंबर 9, एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट वर्ब। अभी तक हम
या तो ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर रहे थे या इंट्रांजिटिव या वर्ब टू बी यूज़ कर रहे थे। अब हमारा जो लास्ट पैटर्न है बेहद आसान है और इसमें हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे द वर्ब टू हैव और हैज़ प्लस अ नाउन फ्रेज। और बिल्कुल आसान सेंटेंस हम बनाते हैं, इन सेंटेंस को यूज़ करते हैं। अब हम पैटर्न के हिसाब से इन्हें देख रहे हैं। ही हैज़ अ कार, आई हैव अ पेन, दे हैव a big house, a house. So easy. And this is the last pattern. You can also use had because we can use the present tense or the past tense. So this finishes your first chapter. Let us sum up the patterns that we have studied today. We have studied 9 patterns. I'll write them all on the board and you can just tell me if you have any problem. The first pattern was noun phrase plus verb. The second was noun phrase plus verb plus noun complement. The third was noun phrase plus verb, and remember this will be verb to be. ये भी verb to be होगा। उसके बाद हमने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज किया था। फोर्थ पैटर्न था हमारा नाउन फ्रेज प्लस वर्ब टू बी अगेन, देन एन एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पैटर्न था हमारा नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। सिक्स था नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज। देन सेवेंथ was noun phrase plus verb plus noun phrase plus noun complement to the object, and after that we have the pattern in which we use a noun phrase, a verb, an object, and now an adjective complement to the object. And the last one is we have a noun phrase, then a verb, the verb to have or has, and lastly noun phrase. So these are the patterns we have studied, and in the exams you can be asked a question. That is, there are two ways in which we can put up questions from this chapter. First is very easy. हम आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे सकते हैं जो कि उल्टे पुल्टे हैं, जम्बल्ड हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मेक सेंटेंसेस, या हम कह सकते हैं अरेंज द इसमें ये सबसे इजी है। हम क्या करेंगे, ये वर्ड्स दे रखे हैं आगे पीछे जिसको हमने कॉमा से सेपरेट किया है,
आपको इसको करेक्ट पैटर्न में अरेंज करना है। तो हम कह सकते हैं ही इज अ टीचर, है ना। इस तरह से, है ना। नाउन फ्रेज, फिर हम वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम आपको सेंटेंस दे दें और आप उसके पैटर्न को पहचानें। ये है दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन इस तरह से होगा, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे दूं। ये है दूसरा तरीका जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और तरीका ये है कि हम आपसे, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, we'll finish it after this। जो सबसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में हम पुट अप करते हैं, जो हमें पूछने में सही लगता है, वो ये क्वेश्चन है, आपको पैटर्न्स दे दिए जाएंगे और आपको उस पैटर्न में सेंटेंस बनाना है। और जब आप इस तरह से पैटर्न को फॉलो करके सेंटेंस बनाएंगे, टेक केयर कि हम, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह से बनाएं और उसके ऊपर या नीचे आप लिख दें ये नाउन फ्रेज है ना, और ये आप लिख दें वर्ब है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं? This is what we can ask you. So this finishes your first chapter.